Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Nevada. This is the third video lecture of the chapter Heat. In last video, we have seen about conduction. I have told you transfer of heat. Heat always transfer from a hot region to cold region. It may be two different material or two different substance. For example, two rod or metal rod or two substance which are at different temperature. When they are in contact, heat transfer from the hotter object to the colder object. So transfer of heat or flow of heat from hot object to cold object is called transfer of heat. This transfer of heat can be within a same rod. फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, उसके एक एंड को हम गर्म कर रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर दूसरे एंड तक होगा. सो इसको हम लोग कहेंगे कंडक्शन. या दो रॉड या दो मेटल है, एक मेटल गर्म है दूसरा ठंडा है और उसको उसके कांटेक्ट में रख रहे हैं तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार से मींस दैट इज आल्सो कंडक्शन. In last video we have seen one activity that tells us how conduction takes place. Take a copper rod, stick some iron nails in that at a regular interval with the help of molten wax. Heat the free end of the copper rod and wait for it. After some time you will see the nail which is close to the flame or the hotter end will fall first, and the last nail which is present at the other end, near other end of the copper rod, will falls at the last. With this activity we can say heat transfer from a hotter end to colder end, क्योंकि जैसे जैसे हीट आगे बढ़ रहा है वैक्स पिघल जाएगा और उसके बाद नेल गिर जाएगा. So with this activity we can say heat transfer within the solid is due to conduction. After that second activity we have told that take some hot water in a container and place some object like iron means metal scale, plastic scale, wooden scale, spoon or divider, and wait for some time. After some time you will touch other end of all the sorry. So what I have told, you have to add means in hot water you have to put the metal scales and the spoon, all those things. After some time you touch the other end of the object which is above the water level, and if you touch individually you will see that the metal scale or the divider or the anything which is made up of metal that will become warm or hot. It means heat is transferring from the other end of hot end of the metal to the cold end. And if you see the scale or the plastic means wooden scale or the plastic scale or pencil, you won't find it is hotter. So these are bad conductors of heat. So I have told you what are conductors. Materials that allow heat to pass through them easily or quickly is called good conductors, and material that do not allow heat to pass through them quickly is called bad conductors. Till here we have seen. In today's video I am just saying one thing: uses of good conductors and bad conductors. For example, if you want to cook food, you will use the vessel or the utensil. Utensil मतलब बर्तन. The utensil should be made up of metal or the material that are good conductors, because it will easily transfer the heat of the flame to the food that we are cooking. So first use of good conductor is it is used to make cooking utensils.
Second point, bad conductors, uses of bad conductors. What is bad conductors का भी कहीं पे यूज है? हाँ, यूज है। कुकर में आप देखे होंगे ब्लैक कलर का हैंडल है, या फ्राइंग पैन में आप देखिएगा ब्लैक कलर का हैंडल है। अगर मान लीजिए कि अगर वो भी हैंडल के जगह पे वो मेटल का ही रहता और खाना बनाते, तो थोड़ा देर के बाद जब आप उसको पकड़ते तो आपका हाथ गर्म हो जाता, यू विल फील इट हॉटर, सो इट इज नॉट कन्वीनियंट। ये सब अच्छा नहीं है, इट इज समवॉट डेंजरस, क्योंकि आपके हाथ से छूट के वो गिर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव प्लेस्ड ए लेयर ऑफ बैड कंडक्टर सब्सटेंस और द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट सब्सटेंस so that it do not get heated while cooking. So handles of the cooker or the frying pan is made up of poor conductor that will help you to touch the cooking utensils when it is cooking. Okay, one more thing that need little bit explanation, that is false ceiling. What is false ceiling? इमेजिन कीजिए कि ये आपका रूम है और ये टॉप फ्लोर पे है, आपका ये रूम है और ये टॉप फ्लोर पे है। जब हीट ऑफ द सन, जब हीट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, तो ये ऊपर का एरिया जो है वो गर्म हो जाएगा। जब ये ऊपर का सीलिंग गर्म होगा, then it will heat the air inside and this will heat the room. इस रूम को भी हीट कर देंगे। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, सीमेंट के मदद से या किसी चीज के मदद से एक और सीलिंग दे देना। दिस इज कॉल्ड फॉल्स सीलिंग। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? जब हम फैन लगाएंगे तो फैन को हम यहां पे लगाएंगे, फैन को हम यहां पे लगाएंगे। क्या होगा? ये हीट के कारण, ये जो टॉप का लेयर है जब हीट हो जाएगा तो यहां पे जो एयर है इसको भी हीट कर देगा, और हीट कर देगा। अगर फॉल्स सीलिंग नहीं रहेगा, फैन चालू होगा तो वो हॉट एयर को नीचे की ओर पुश कर देगा और रूम गर्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉल्स सीलिंग, मतलब एक्चुअल सीलिंग ये है बट एक लेयर हम इसके बीच में भी लगा देंगे, मतलब सीलिंग के नीचे लगा देंगे एक लेयर पूरा सीलिंग के बराबर तक का। उससे क्या होगा? एयर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, एंड एज वी नो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को यहां से यहां पास नहीं होने देगा। यहां पे हीट का ट्रांसफर एयर के थ्रू नहीं हो रहा है, गर्म हवा नीचे आ जा रहा है फैन के कारण, इसलिए रूम हीट हो जा रहा है। तो जब इस फॉल्स सीलिंग को देंगे तो जो हॉट एयर है वो ऊपर ट्रैप हो जाएगा। जब ये ऊपर ट्रैप हो जाएगा तो रूम थोड़ा सा ठंडा रहेगा। सो दिस poor conductor, air is a poor conductor of heat which is preventing the room from getting heated. This is one of the use of poor conductors, means bad conductors. So two examples for poor conductor I have told you. Poor conductor is used to make the handle of the cooking utensils, and it is used for making the false ceiling. So if you want to write, you can write use of good conductor. It is used to make cooking utensils. एग्जाम्पल किस चीज का कुकिंग यूटेंसिल हो सकता है? कॉपर का, एल्यूमिनियम का, या स्टेनलेस स्टील का। यूज ऑफ पुअर कंडक्टर। फर्स्ट, it is used to
make insulating handles of cooking utensils. Example, cooking pan, pressure cooker. Second, it is used in false ceiling. Okay, ओके हाँ, अब आ गई बात समझने की नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन. वी हैव कंप्लीटेड कंडक्शन, नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कन्वेक्शन. व्हाट इज कन्वेक्शन? The process of transfer of heat means it is a process of transfer of heat in liquid or gas. किसमें होगा ये? In liquid or gas by actual movement of molecules of the material. Means इसके पहले कंडक्शन में हम बोले molecules of material is not transferring, only heat is transferred. But in the liquid or gas case, molecules are widely spaced. मालूम है ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं. अगर मान लो ये मॉलिक्यूल्स इतना नजदीक है तो सॉलिड, इतना दूर है तो लिक्विड, और इतना दूर है तो गैस. तो अभी क्या होगा, जब इस एंड को हम हीट करेंगे, मान लो कि ये मेटल है, ये मेटल रॉड है, इस एंड को जब हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हीट होगा. जब ये हीट होगा तो बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा. जब ये वाइब्रेट करेगा तो अपने नजदीक के मॉलिक्यूल के साथ ये कोलाइड करेगा, मतलब स्ट्राइक करेगा. जब स्ट्राइक करेगा तो हीट को यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा. जब ये मॉलिक्यूल हीट हो गया तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, तो ये हीट को यहां ट्रांसफर कर देगा. लाइक दिस हीट इज ट्रांसफर्ड इन द मेटल. बट इन द लिक्विड केस, इफ यू हीट this molecule heat up and it start vibrating. Since two molecules are widely spaced, there is no collision between the molecules, so there is no mean of transfer of heat by conduction. So how transfer of heat take place in liquid is due to actual movement of the material. अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे. तो एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के मदद से हम इसको समझ सकते हैं. तो क्या करना है, एक लेना है, ये राउंड है, गोल है, तो इसका नाम है राउंड बॉटम. बॉटम मतलब नीचे, और ये ग्लास का बना हुआ है तो इसको फ्लास्क बोलेंगे. एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिए, ठीक है. इसको पानी से भर लिए, यहां तक पानी से भर लिए. What we have taken? We have taken a round bottom flask and filled it with water. What you have to do? You have to take crystal of potassium permanganate. हड़बड़ाने का नहीं, कुछ नहीं है ये पोटेशियम परमैंगनेट, सिर्फ एक नाम है और कुछ भी नहीं. बस समझ लो कि ये कलर ले रहे हैं, क्योंकि पानी का मूवमेंट हम लोग नोटिस नहीं कर सकते हैं, बट कोई कलर अगर इसमें मिला देंगे तो आसानी से हम इसको नोटिस कर सकेंगे. कलर लिख मत दीजिएगा, मगर समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है. डोंट गेट मेक इट हाइप. ओके, सो क्रिस्टल. क्रिस्टल मतलब ये भी एक छोटी सी बात है. चीनी होगा आपके घर में, हाँ, एक चीनी के टुकड़े को अपने हाथ में लीजिए और फिर उसको देखिए, तो वो जो आपके हाथ में है वो छोटा सा क्रिस्टल है. किसका? शुगर का. दैट इज ए क्रिस्टल, मतलब एक छोटा टुकड़ा. तो उसी प्रकार पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा टुकड़ा लेना है, तो आप क्रिस्टल कह लेते, नाम दे दिए क्रिस्टल, नथिंग मोर दैट. एंड एक स्पैचुला, अगेन फिर कंफ्यूजन हो जाएगा.
व्हाट इज अ स्पैचुला? चिमटा, जिससे मम्मी रोटी बनाती है उसको चिमटा बोलते हैं। उसी प्रकार एक स्पैचुला मतलब एक स्पैचुला चिमटा नहीं बोलिए, इसको चम्मच बोल लीजिए। एक्चुअली गलती बोल दिया, हम चिमटा बोलना था, चम्मच बोलना था हमको। चम्मच ही है बट थोड़ा सा वो उसका शेप अलग होता है। वो ऐसा गोल सा एक एंड में होगा और दूसरा एंड जो होता है उसका वो फ्लैट होता है। इस प्रकार से ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा मेटल का बना हुआ स्टेनलेस स्टील का बना हुआ लेबोरेटरी में पाया जाता है। लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाले चम्मच को स्पैचुला बोलते हैं। बस खत्म बात, और कुछ नहीं। तो नाम दिया हुआ है। एक स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना है और प्यार से धीरे से इसको यहाँ पे गिरा देना है नीचे, मतलब इसके अंदर डाल देना है। क्या डाल दिए हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यहां पे डाल दिए हैं। इसकी एक खूबी है, ये डिसॉल्व होता है, इट गेट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। ये क्या करता है? एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाता है, एक कलर का सॉल्यूशन। क्योंकि पानी है, ट्रांसपेरेंट है, तो हमको आसानी से दिख जाएगा। इसीलिए हम एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को नीचे डाल दिए हैं और वो डिसॉल्व होकर वो क्या करता है? वो पर्पल कलर सॉल्यूशन बनाता है। जैसे ही हम इसको यहाँ डालेंगे तो इसके चारों तरफ पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। धीरे धीरे वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ ए फ्लेम इसको हीट करेंगे। When you heat that, you have to notice the movement. When I have told you this purple color solution which is formed around the potassium permanganate, that solution's movement you have to notice. So you will see that this solution, since water is transparent, तो इसलिए वाटर में मूवमेंट नोटिस नहीं कर सकते, मगर ये अलग कलर है तो नोटिस तो कर ही सकते हैं। So this solution, this purple color solution will rise to the top of the liquid. ये ऊपर की ओर जाएगा और थोड़ा देर के बाद देखेंगे ये ऐसे इधर से नीचे की ओर आएगा और इधर से ये नीचे की ओर आएगा। मतलब this solution is first rising to the top, means top layer of the water and from the side it comes down. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कह रहे हैं? जब ये हीट ट्रांसफर हुआ तो हम बोले कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो आसानी से हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मगर गर्म तो हुए हैं, वो गर्म हुए हैं, इसका मतलब उनका मूवमेंट ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है इसका मतलब वो फैल रहे हैं, और कोई चीज जब फैलता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, भीड़ ज्यादा है तो ज्यादा कंजस्टेड है, फैला हुआ है तो कम कंजस्टेड, ज्यादा जगह छेकेगा। तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल पानी जो ले लिया है वो ज्यादा जगह छेक रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल जो हीट होगा, इतना ही शॉर्टकट में समझिए कि वाटर मॉलिक्यूल दैट गॉट हीटेड, स्पेशली यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल दैट गॉट हीटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही फ्लेम के नजदीक है, दैट गॉट हीटेड बिकम लाइट, लाइट मतलब हल्का। So if it become light, it will rise up. ये ऊपर की ओर मूव करेगा। Once it reaches to the surface, it will lose the heat into the atmosphere. Atmosphere में heat उसका चला जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा और फिर वो यहाँ से ऐसे नीचे, मतलब cold water comes down from the side of the flask and hot water rises up from the center of the flask. This movement continues. ये होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म इक्वली न हो जाए, और एक बार जब पूरे पानी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो ये लिक्विड बीच से बॉइल करने लगेगा। सो विद दिस एक्टिविटी आई कैन से ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो रहा है?
मॉलिक्यूल हीट लिया, ऊपर चला गया, खाली जगह को यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल भर दिया, अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल वो हीट लिया, फिर वो ऊपर गया। मतलब क्या हो रहा है? कन्वेक्शन में हम आपको बोले थे, समझाए थे कि हम कॉपी देंगे तो सब बच्चा अपने आएगा कॉपी ले जाएगा, अपने आएगा कॉपी ले जाएगा। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल खुद आता है, हीट लेता है, चला जाता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है, हीट लेता है, चला जाता है। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू convection. Okay, so I will write, video is already 20 minutes long, I will write and then I will, okay, see here, convection, the process of transfer of heat in a liquid or a gas by the actual movement of the particles of liquid or gas is called convection. Next is activity, to show that liquids transfer heat by convection. Method, tarika, take a round bottom flask and fill it 2/3 with water. Place a small crystal of potassium permanganate at the bottom of flask with the help of a spatula. spatula, spatula. Potassium permanganate dissolves slowly and form a purple colored solution around the crystal. क्रिस्टल के चारों तरफ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. हीट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, मतलब बर्तन को गर्म कीजिए, एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. अब उस सॉल्यूशन के मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए. ऑब्जर्वेशन, द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन राइजेस अप टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड then move downwards near the walls of the flask. मीन्स पहले वो पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन सरफेस तक जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा. So conclusion, from activity we conclude that liquid transfer heat by convection. Okay, so जो आप वाटर का मूवमेंट देखे, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करेंट. इसको कहते हैं कन्वेक्शन करेंट. सम प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करेंट. अभी देखिए, द रूम्स, जो हम लोग के घर में जो रूम्स है उसमें वेंटिलेटर्स और द एग्जॉस्ट फैन, they are placed near the top end of the wall, side wall के top end पे हम लोग वेंटिलेटर देते हैं. आपके घर में भी होगा. क्यों? जब हम लोग सांस लेते हैं तो we release warm air and this warm air heats the air surrounding us, and when air gets hotter it rises up. When it rises up, अभी देखिए ना, पानी गर्म हुआ तो ऊपर चढ़ रहा था और ठंडा पानी नीचे आ रहा था. So the air gets hotter, it rises up. When it rises up, it goes out from the room through ventilators or the exhaust fan. That's why the ventilator and exhaust fan should be present on the top of the side walls. That is ventilators. Second is chimneys. चिमनी वगैरह जो होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, वो प्लेस किया जाता है हाइट पे, और उसका एक एंड होता है हाइट पे. क्यों? दो हार्मफुल और अनडिजायरेबल फ्यूम्स और द गैसेस दैट कम्स आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, it goes out into the atmosphere through that chimney. Second, because these fumes or the hot air that is coming from the factories are lighter and it rises up, it is lighter than air, it rises up and goes into the atmosphere. And the last one is installation of room heater. कहीं कहीं पे किसी जगह पे ठंडा प्रदेश, जहाँ पे एरिया ठंडा है, वहाँ पे लोग रूम हीटर प्रोवाइड करते हैं. तो इमेजिन कीजिए कि एक घर है, इस घर में अगर रूम हीटर को हम यहाँ टॉप पे लगाएं तो यहाँ का एयर जो है ये हॉट होगा, और हॉट होने के बाद ये ऊपर ही रह जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा. इसीलिए इट इज एडवाइज्ड टू प्लेस द रूम हीटर नियर द ग्राउंड.
ग्राउंड के नजदीक रूम हीटर अगर लगाएंगे तो यहाँ का एयर जो है वो पहले गर्म होकर ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ठंडा एयर नीचे आएगा, ठंडा एयर नीचे आएगा तो वो भी गर्म होगा। मींस इस प्रकार से पूरे रूम का एयर जो है वो वार्म हो जाएगा। ओके, सो आई विल रीड वंस सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट। Someone will say, sir, it is not visible. I am saying, I will reading it. You can write it from the listening, means from listening what I am saying. Ventilators or the exhaust fan is provided near the top of side walls. Hot air is lighter and comes out from room through ventilators. Room से बाहर चला जाएगा hot air with the help of ventilator. Chimneys. Undesirable fumes or gases from the factories are lighter from air and rises up and escape through chimneys. Installation of room heater. Room heater should be placed at the ground level so that the air in the room so that all air in room becomes warm. Okay, so these are the practical application of convection current. और अभी हम लोग को दो चीज और पढ़ना है, क्या? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इन कन्वेक्शन करंट। मींस इन कन्वेक्शन एक दो टॉपिक बची हुई है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। छोटी सी बात है, सिर्फ थोड़ा सा समझाना है। और अभी कन्वेक्शन करंट अगर आप समझ गए हैं तो ये बहुत आसान है, इजी है। सो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे। इसीलिए फिर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके।